Good morning, everyone. Welcome to Mans Chandigarh IAS Academy. Let's start historical background. Question number 51. Indian Council Act of 1861 introduced which of the following provisions in the first time in India? First, power to issue ordinances in Indian administration, nomination of Indians as non-official members to Viceroy Council, the new office of Secretary of State for India. Select the correct answer using the code below. 1, 2, 2 and 3, 3 only, 1, 2, 3. Yes. What do you think? कौन से statement सही है? Try to solve it out. Let's start. Indian Council Act of 1861. This statement is absolutely correct. ये पावर दे रही थी वायसरॉय को कि वो ऑर्डिनेंस है खुद इशू कर सकता है, राइट? This statement is correct. Nomination of Indians as non-official members to Viceroy Council. This statement is also correct. ये हमने पहले कवर किया है. राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सरदनकर राव. This statement is also correct. लेकिन जो न्यू ऑफिस है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये कब बनी थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं, 1858. Government of India Act 1858. Let's move to the next one. Which of the following is or are the defining features of the parliamentary form of government? Parliamentary form of government we have covered many times in the series. So, watertight separation of power between the executive, legislature and judiciary. Second, we have the executive is responsible to the legislature, the division of power between center and state. Yes. देखो, parliamentary form of government के अंदर watertight separation नहीं होता, because executive is responsible to legislature और we say लोकसभा, collective responsibility की जिस पे हम बात करते हैं. ये statement गलत है, ये बिल्कुल सही है. और डिवीजन ऑफ पावर, इट इज नथिंग टू डू विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डिवीजन ऑफ पावर डिसेंट्रलाइजेशन और ऑटोनॉमी शो करती है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. द करेक्ट आंसर इज सी, 2 ओनली. Yes, next one. Which of the following principles were included in objective resolution? इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं. Passed by the Constituent Assembly. First है power and authority of independent India and its constitution shall flow from people. Second, minorities and other backward classes will be provided adequate safeguards. Third, India will make a full and willing contribution to the promotion of world peace. Which of the following codes are correct or statement is correct? Simply, all 3 statements are correct. ये तीनों बातें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बात की गई है. Your homework. Compare ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विद प्रीएम्बल कि कौन कौन से पॉइंट्स सिर्फ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में है और कौन से प्रीएम्बल में है. मेक अ टेबल ऑफ इट. इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So 1, 2 and 3 are correct. Members of the Constituent Assembly of India were, क्या वो डायरेक्टली इलेक्टेड थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे या नॉमिनेटेड थे? हमें ये पता है कि जो प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस थी वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आ रही थी, प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेट होकर आ रही थी. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. 2 and 3. 55. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोला जाता है? हमने इसके बारे में भी बात की है. क्योंकि इट इज ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन एज पर द नीड्स एंड द चेंजेस इन द सोसाइटी. सो इट इज ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, चेंजेस एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी. The Constitution provides enough flexibility of interpretation for both political class and judiciary. I hope this is clear to all.
नेक्स्ट, who among the following first put forward the idea of constituent assembly for India? Yes, what do you think? किसने constituent assembly का idea सबसे पहले दिया था? Let's start, बात करते हैं इसके बारे में। 1934 में M.N. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया रखा था, डिमांड की थी। He was a pioneer of communist movement in India. उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बात की, उन्होंने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। एंड इन 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड टू बिल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। I hope this is clear. So M.N. Roy was the one. 57th. Consider the following statements regarding Constituent Assembly. क्या Constituent Assembly fully sovereign body थी? Of course, it was a sovereign body. It could abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India. ये बात भी सही है कि जो भी वो चीज चेंज करना चाहती थी आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इट कैन डू दैट। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स नेवर जॉइंट असेंबली, ऐसा कुछ नहीं था। प्रिंसली स्टेट्स ने स्टार्टिंग में नहीं पार्ट लिया था, बट आफ्टर माउंटबेटन प्लान उन्होंने उसको ज्वाइन किया था। उनकी सीट्स 93 थी, बट 70 सीट्स वर फिल्ड। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, 1 and 2 are correct. 58. Which of the following statements is not correct? Always, circle the words not correct. आपसे क्या पूछा जा रहा है, correct or not correct? With respect to Government of India Act 1990, it divided the provincial subjects into reserved and transferred. It introduced a bicameral legislature at the center with upper and lower houses. पहले हम दो स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। पहली स्टेटमेंट सही है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए गए थे रिजर्व्ड में और ट्रांसफर में। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स किसके पास थे? पर्टिकुलरली ब्रिटिश के पास थे रिजर्व सब्जेक्ट्स, एंड दे आर नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे इंडियंस के पास। कौन कौन से हो सकते हैं? हेल्थ हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है। जो मेन फाइनेंसेस था ना, दैट इज ए रिजर्व सब्जेक्ट। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इंट्रोड्यूस्ड अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। यस, सेंटर में इंट्रोड्यूस किया था बाइकैमरल लेजिस्लेचर। फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड की बात करते हैं। This act authorized states to enact their own budget. ये बात भी बिल्कुल सही है कि वो अपना बजट खुद बना सकते हैं। It provided for separate electorate for Muslim, Sikhs and Anglo-Indians for the first time. क्या यहाँ पर इन लोगों की बात की गई थी? बिल्कुल गलत। ये कहाँ आ चुका था ऑलरेडी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909. I hope this is clear. 59th. Constitutionalism is a philosophy of limited government. Which of the features of Indian Constitution enforces this philosophy? Constitutionalism ये एक आइडियोलॉजी है जो शो करती है लिमिटेड गवर्नमेंट की। लिमिटेड गवर्नमेंट मींस देयर फंक्शंस आर रिस्ट्रिक्टेड, दे कैन नॉट इन्फ्रिंज फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस। लिमिटेड गवर्नमेंट मींस वो लोगों के पर्सनल स्फेयर में नहीं जा सकती। लोगों के पास जो सर्टेन राइट्स गिवन है उनको प्रोटेक्ट करना भी उनका एक वर्क है। ओके, सो फंडामेंटल राइट स्टेटमेंट इज करेक्ट। व्हाट अबाउट डीपीएसपी? डीपीएसपी जो है वो स्टेट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही है, वो स्टेट को बताती है कि उनको क्या क्या काम करना है। सो दिस थिंग, ये चीज जो है वो लिमिटेड गवर्नमेंट में नहीं शोकेस की जा सकती। और अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, लोगों की, सिटीजन्स की क्या क्या ड्यूटीज है टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द नेशन, ये उसमें पता चलता है। यहाँ पे भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होती है, गवर्नमेंट के एक्शंस रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट।
In the context of Indian polity, in which of the following matters can the governor act in its discretion? आर्टिकल 163 गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर से डील करता है. So, submitting a report to the president under Article 356 on the failure of constitutional machinery at the state. This statement is correct कि गवर्नर अपने डिस्क्रिशन पे रिपोर्ट सबमिट कर सकता है अगर उसको लगे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर है. रिजर्विंग बिल फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ऑफ कोर्स हम इतना इशू न्यूज में सुनते हैं कि तमिलनाडु का गवर्नर, कर्नाटका की गवर्नर ने बिल रिजर्व की है फॉर द प्रेसिडेंट और कितना टाइम हो चुका है उस बिल पे एसेंट नहीं आ रहा है. Appointing a chief minister if no single party has secured a majority in the state election. This statement is also correct. Okay, this is it for today. Meet you in the next lecture and we'll cover this topic. Okay, have a good day, nice day.